into logging a logging a data house. Logging a data house. It's a legal idiom, not an idiom, it's a proverb actually. Logging a data से मरे हुए घोड़े को साबुत मारना. So इसका एक मीनिंग है, तो it can be called an idiom as well. So it can be called that. Called an idiom. Good evening, sir. Sir, I can't hear you. Okay, now you can. Yes, sir. Yeah. Okay, yeah, on camera after a long time. Good evening, sir. Good evening. How are things there? Good evening, sir. Everything Good is evening, good. Sabaji. Good evening. Good evening, sir. How are you, sir? Better. Okay. On the You have a path cold. to Cold or recovery. fever? Huh? Yeah, I have myself to blame. I ate a big guava on the 31st of December. I was acting smart, showing it off. I can eat a big guava at night. People asked me, I think Ravi was the one who said something, and I said, yeah, I'm being adventurous. I'm making sure that I fall sick. And I did fall sick. I was overconfident of my body, my immunity. Do we have homework in the main book, in the practice book somewhere? Where? It's been such a long time. First day in this year. First day this year. Yeah, I remember our last class was about comparison and all. So we are going to do this page number 46. Page number 46. Rewrite the sentence using as da da da, as not as da da da, as. I think I was checking this. I was in the middle of it when I decided to stop and give you guys practical, exposure, practice, about ourselves, and we made sentences. Now we are going to do this. Her work is good and my work is also good. Her work is as good as mine. Scotland is colder than England. It means England isn't as cold as Scotland. Bill is taller than me. It means I'm not as tall as Bill. My car costs 60,000 pounds. Her car also costs 60,000 pounds. It means her car was as expensive as mine. Number 5, Jane's house is older than Harry's, and Jane's house is not as modern as Harry's because her house is older. So her house is not as modern as Harry's. Your daughter isn't shorter than you anymore. Your daughter is as tall as you now. Okay, good news. Good evening, sir. Hey, Kalpana, good evening. Superlatives now. Ethan is the noisiest boy in the group, but you are supposed to write the opposite. You have to disagree with these statements. No, he isn't the noisiest boy in the group. He is the quietest. क्या बोल रहे हो? वो तो सबसे शांत है. तुम कह रहे हो सबसे हल्ला करने वाला है. वो नहीं है सबसे हल्ला करने वाला लड़का. उल्टे वो सबसे शांत रहने वाला लड़का है. He's not the noisiest boy in the group. He's the quietest. She bought the cheapest bag in the shop. क्या बक रही हो? वो सबसे सस्ता खरीदी. तुम पगला गई हो. सबसे महंगा वाला खरीदी थी वो. She didn't buy the cheapest bag in the shop. She bought the most expensive one. This is the easiest exercise in the book. पगला गए हो. सबसे आसान है ये. ये सबसे मुश्किल है. This isn't the easiest exercise in the book.
It is the most difficult. Difficult. This is the most beautiful building I've ever seen. क्या बकवास कर रहे हो, इतना गंदा बिल्डिंग हम आज तक नहीं देखे हैं. This is the most, this is the ugliest building I have ever seen. आगे सुनना, इसका थोड़ा सा बाद में रिएक्शन देंगे आपको बुलवा करके. जिम इज द मीनेस्ट पर्सन आई नो. क्या बात कर रहे हो यार, उससे बढ़िया आदमी तो हम आज तक नहीं मिले हैं, क्या बात करते हो. जिम इज द बेस्ट पर्सन, इसका द मोस्ट जेनरस पर्सन आई नो. मीनेस्ट मतलब पैसा ना खर्च करने वाला. ओके, तो द मोस्ट जेनरस पर्सन आई नो. द ऑलिव ट्री इज द बेस्ट रेस्टोरेंट इन टाउन. क्या Meanest means बकवास कर रहे हो. कंजूस. कम अगेन कल्पना. Meanest means कंजूस, right? वो तो मीन मतलब, बाकी आप समझ लेना. मीनर हाँ मीनेस्ट. हाँ, meanest. हाँ Meanest is एग्जैक्टली एग्जैक्टली. देखो superlative. भाई, इतना कॉमन सेंस लगाना कि मीनेस्ट मतलब नहीं होगा, मीन मतलब होगा. राइट दोस्तों, वो बोल गई Yes, sir. है ना. You also said that meanest means पैसा यस ना एग्जैक्टली, करना. वही मैं बता रहा हूँ कि That इतना कॉमन सेंस लगा that is लेना. why I हाँ repeated. ठीक है, हाँ मेरी गलती, मेरी गलती, मेरी अम्मा, मेरी गलती. ठीक है. The olive tree is the best restaurant in town. No, it is the worst actually. चलो अब बात करो, मेरे से करो. आप बोलो, हम डिसएग्री करके दिखाते हैं. You guys make these statements and I will show you how to disagree. चलो. इथन की जगह जिशान बोल देते, रवि बोल देते. हाँ, लेकिन उसको क्वाइटेस्ट भी तो नहीं बोल पाएंगे. Okay. So go ahead and say Jishan is the noisiest boy in the class, in the lady in the group. No, she isn't. She's the quietest. Next. Bought. She bought the cheapest bag in the shop. No, she didn't. She bought the most expensive one. This is the easiest No. exercise in the book. No, it isn't. It's the most difficult. This is the most beautiful building I have ever seen. No, it isn't. It's the ugliest. Azim is the meanest person I know. No, he isn't. He's the most generous. The olive tree is the best restaurant in town. No, it isn't. It's the worst. इन द टाउन नहीं बोला, इन टाउन बोला है. जहाँ, हाँ मैं सिखा रहा हूँ आपको, गौर करिए. ठीक है, इन टाउन. ओके. जब आप जिस जगह पे आप रहते हैं वहां के बारे में जब कुछ बोलते हैं तो आप इन टाउन बोलते हैं दोस्तों. क्या बोलते हैं? इन In टाउन. town. ओके. जैसे आप आदेश अपने बिहार शरीफ में आप हो, ठीक है, मान लो बिहार शरीफ आपका शहर है, एंड आप बिहार शरीफ की किसी लड़की को बोले ना कि तुम इस शहर की सबसे सुंदर लड़की हो, तो आप क्या बोलोगे? यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन टाउन. In town. ओके, ये ठीक है. आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस बेसिक आइडिया. इंग्लिश का आइडिया है, इसमें ध्यान रखना है. ठीक है. If you're talking about any specific city, okay, you're talking about any specific city, you can use the word the city, the town, no problems. In the Bihar Sharif. Okay. Yes, Saurav, you are the most energetic student in the class now. Why? And why are you off camera, Saurav? Better. Nobody. Okay. So, दोस्तों, when you're talking about the town where you live, you don't use the normal, you say in town. Okay? जैसे कहते हैं, आप हिंदी में बोलो, हिंदी में बहुत अच्छा फ्रेज बनेगा, शहर की सबसे खूबसूरत लड़की हो तुम. You are the तुमको You are the most beautiful girl in town. town. ठीक है. शहर के सबसे प्रसिद्ध इंसान हैं आप. You are the You most are the You are the most most famous famous person in person town. in town. town. आप हिंदी में क्या बोलते हैं? शहर के. आप खाली इतना ही बोलते हैं ना, शहर के, इतना ही बोलते हैं ना, शहर के. In town. Okay? I hope you understand everyone. Listen. और द टाउन मतलब एक स्पेसिफिक शहर. और अब आप यहाँ पर वो वाला लॉजिक लेके मत आना, क्योंकि यही चीज प्रॉब्लम करेगी इंग्लिश में आर्टिकल्स द के लिए, कि सर हम जिस शहर में रह रहे हैं उस शहर के बारे में बोल रहे हैं, आपको पता है, तो द नहीं लगाएंगे. नहीं, यहीं यहीं पर एक एक्सेप्शन बन रहा है, नहीं लगाना है. ऐसा लॉजिक लगेगा कि अरे सर आपको तो पता A है मैं किस शहर के specific बारे में बात town कर that रहा हूँ. means जैसे मैं बताता हूँ. ठीक है. मान लो वी आर टॉकिंग अबाउट ए टाउन कॉल्ड गया. ओके.
सिटी कॉल्ड गया, ठीक है। तो फिर आप उसके बारे में अगली बार मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। गया इज अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी। आई लाइक द शॉप्स एंड APR is the best cinema hall in the city. In the city means which city? Because I गया know, you guys know I was talking about Gaya, गया right? गया तो हाँ, तो उस हिसाब से I hope you understand in the city. We were talking about a specific city Gaya here. या So in the city. लेकिन ऐसे नॉर्मली या इन द टाउन, लेकिन जब अपने शहर की बात कर रहे होते हैं जहां आप रहते हैं, तो वहां जो फ्रेज यूज करते हैं शहर में बोलने के लिए, क्या बोलते हैं आप? इन टाउन। इन टाउन। Why are you the most energetic student now, Saurabh? What happened? Which prasad have you received that has made you the most energetic? I was giving example like Kalpana ji. सॉरी कम अगेन आई Repeat. डिडंट गेट Repeat yourself. Me, Yeah. uh, I just gave an example of superlative. You were just giving an example. You're not actually feeling like the most energetic one right now. Okay. Okay. Good. So all those mistakes, Saurabh, that you corrected, easily, why did you make them in the first place? Carelessness? No, I was in hurry and you can say carelessness. Yeah, I was not expecting them. That's why I didn't correct them. I simply said you need to correct, and you did correct them all. Well done. Prepositions. ध्यान रखना दोस्तों, आप लोग जब लापरवाही करोगे ना तो आप गलतियां करोगे। जब कोई नया कोई काम कर रहा होता है उसको ध्यान से करना पड़ता है। तो अभी आप लापरवाही करने की आदत मत डेवलप करो। ओके, नेवर राइट इंग्लिश इन अ हरी, never speak English in a hurry. What will happen? You will start making mistakes, and those mistakes will become part of your habit over time. And that's why you should speak English taking your time patiently, thinking about what you're, never run after that, that glamour thing, what people call fluency. Okay. Just speak slowly, taking your time is all right initially, because you're actually developing good habits. As children grow up, you guys will get fluency, and you will lose that all the time. But if you try to go after, speed at first, you will never have accuracy. Never, I'm saying. Have you forgotten that student we had? Big-eyed boy in our class? No. No, the one who gave me this screen. No. Uh, I think he was in the previous class. Okay, he was not part of your class, I think. So he spoke very well, but then it was very hard for him to correct his mistakes. My point is, if your English is at a higher level and you find it more difficult to correct your mistakes, then what kind of higher level is this? For example, if there are 10 students in the class and 6 of them are at a higher level, and I'm teaching an idea which all of them find new, but these 6 are struggling to grab that idea, and these 4 who have comparatively low English, they understand that idea more easily, my explanation more easily. Why? What kind don't of know higher English is that then? Who will explain this? don't know Go ahead, Kalpana, try. अगर कोई 6 बच्चों की इंग्लिश बेहतर है और मैं कोई आइडिया एक्सप्रेस कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो जो बेहतर है उसको पहले समझ में आना चाहिए ना। बड़े लोग को कोई बात आसानी से समझ में आनी चाहिए ना। समझदार लोग को समझदारी आसानी से आनी चाहिए। तो इंग्लिश की बात बताई जा रही है, मैं तो केमिस्ट्री की बात नहीं लेके आ रहा कि भाई केमिस्ट्री मेरी स्ट्रांग नहीं है। आप इंग्लिश की बात कर रहे हैं, तो फिर वो 6 बेहतर जो है उनको जल्दी समझ में आना चाहिए ना, और जल्दी उस पर सेंटेंस बनने चाहिए उनसे ना। इसी से पता चलेगा ना सीनियर कौन है, जूनियर कौन है। लेकिन वो ज्यादा देर स्ट्रगल करे तो कैसा सीनियर हुआ है?
जवाब देना सारे लोग। Because they were in hurry, or मैं they are not. इसके पीछे बहुत सारी वजह हो सकती है, एक वजह बहुत इंपॉर्टेंट बताता हूँ। ध्यान नहीं था एक्सप्लेन वो में सारे चीजें आप explain। लोग बोलोगे, मुझे पता आप लोग बोलोगे, एक चीज बताता हूँ मैं अपनी तरफ से जो मैंने महसूस किया, कि वो बेहतर है, ये अपीयर हो रहा है लोगों को सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने जो लंबा समय बिता दिया है ना, 10 साल बिता दिया सीखते हुए, कोई 2 ढाई साल से सीख रहा है, आप समझ रहे हो, 5 गुना का फर्क टाइम में। तो उस वजह से उनके पास जमा ज्यादा हो गया है, लेकिन समझ नहीं बनी है। और समझ ना बनने की वजह से ये जो 2 साल में जमा नहीं कर पाए बेचारे, कम दिन से सेव कर रहे ना, लेकिन समझ बनी है तो पकड़ लिए फटाक से कि बताया क्या जा रहा है। वो जमा बहुत कुछ कर लिए, समझ नहीं बनाए हैं। दोनों दोनों में फर्क समझ में आता है, जमा करना और समझ बनाना। या ऐसे मैं कई लोगों को जानता हूं जिनकी समझ कुछ नहीं है इंग्लिश की, जमा बहुत कर रखा है। जमा करना मतलब होता है स्टोर कर लेना वोकैबुलरी को, इस वर्ड का ये हिंदी होता है, उस वर्ड का ये हिंदी होता है। इतना लंबा समय एक ही चीज करते हुए बिताया है ना, कि उनको याद हो गई बहुत सारी चीजें, लेकिन समझ नहीं बनी उनकी। तो कोई नया कॉन्सेप्ट उनको बताओ इंग्लिश के बारे में, और उनको इतना मुश्किल होएगा वो नया चीज समझना, या तो नया वोकैबुलरी या नया ग्रामर लेसन, एंड दे स्ट्रगल सो मच। चलो, um, we will now move on। ये जो बात मैंने बताई ये बहुत इंपॉर्टेंट है या नहीं तुम्हारे हिसाब से, कि कोई चीज सीनियर जूनियर इंग्लिश में किस तरीके से समझना चाहिए? कि अगर कोई नई बात बताई जा रही है तो सीनियर को पहले समझ में आनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश के बारे में है, इंग्लिश का कोई ग्रामर रूल है, इंग्लिश का कोई वोकैबुलरी है, राइट? और वो जूनियर पहले समझ रहा है और सीनियर को स्ट्रगल हो रहा है, नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा है, वो सच मायने में सीनियर है समझ के मामले में? nope। नहीं है। तो always judge seniors and juniors on this basis, not on the basis of who has accumulated, jama karna, who has accumulated more vocabulary because they have spent more time only. Because what happens when you are exposed to people who do not speak your own language, then your storage will not come to your help, your understanding will. When you guys are talking to somebody who doesn't speak Hindi, then what will help you? Your big vocabulary that you have memorized, it is never going to help you guys, because each word that you remember in English, you remember the Hindi of that word, and the person who you're talking to doesn't understand Hindi. So all your logic and thinking will run, based on Hindi, कि हिंदी में ऐसा होता है, ये हिंदी का ये इंग्लिश है, और वो सामने वाला समझेगा नहीं, उसको हिंदी नहीं आती। तो इंग्लिश को इंग्लिश में समझने की कोशिश करो। Now, it's the tallest. B, a word from B. As, than, like, in, from. It's the tallest. Tallest के बाद कभी भी than नहीं आ सकता। आ सकता है क्या tallest के बाद कभी भी than? नो। क्या आ सकता है? तुम अभी, मैं क्लास कैंसिल कर रहा हूं आज का, और आप दोनों बहुत मेहनत करी जा करके इस चैप्टर पे। नहीं, ये गंदा जवाब था, इतना गंदा जवाब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। आपने यूनिट 7 का स्टार्ट जो हुआ है जब से, और मैं ये वाली वीडियो की बात कर दूं, मेरा पिछला क्लास कौन था जो मैंने अचानक से बीच में आप सब लोग को एक दूसरे से उम्र और क्या क्या कंपैरिजन करवाया था, उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है दोस्तों? सुपरलेटिव। वो आप देखेंगे, बहुत गंदा जवाब दिया दोनों ने, एकदम गंदा। नो, कोई फायदा नहीं है, ये ऐसे आना चाहिए था सही। हाँ, बस एक ही ऑप्शन बचता था, आया दिमाग में? It was a very bad answer, guys, very bad answer. I felt really disappointed. That's why I said बंद कर देता हूँ आज का क्लास, क्योंकि मुझे लगा यहाँ से आगे बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। नो सर, आई थॉट यू आर नॉट फीलिंग वेल। ना 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 ना, इट वॉज अ बैड रिएक्शन, बैड रिस्पॉन्स। आपको पता नहीं है, दिस इज सो इंपॉर्टेंट फॉर मी कि आप ऐसी गलतियां ना करें। टॉलेस्ट के बाद एक ही बात पॉसिबल ही है, इसमें से एक ही पॉसिबल है दोस्तों। फ्रॉम। कल्पना, अब आपको हटाऊंगा क्लास से।
Tallest than, नहीं tallest भाई than नहीं, आप tallest लोग, in the अरे world. अरे वो वीडियो लिंक, वो वीडियो शेयर करो ग्रुप में, अभी करो, मैं उसको लिंक ये करता हूँ, पिन करता हूँ, सब लोग देखेंगे उसको। Tallest from. Tallest in the world. अच्छा अच्छा, छोड़ो, नहीं नहीं, Oh तुम लोग yeah, को अब नहीं yes, पढ़ाना, go अब ahead. लोग पढ़ाना नहीं है, अब तुमने, अब मुझे दूसरा सवाल पूछना है। किसने किसने ये दोनों वीडियोस देखने की जहमत उठाई, जो वीडियोस मैंने डाला? एक मेरा अच्छा अच्छा बच्चा है आरिश, और दूसरा कोई जिसने कहा कि सर ने वीडियो भेजा है मुझे देखना है? नहीं, कोई नहीं, न सिंह I am साहब, sir. भैया। झूठ ना बोलना रवि, इज्जत बचाने के लिए। मैं तो देख ओके, और कोई? हो गया, बहुत but I did not grab much. बहुत दिन इज्जत कर ली टीचर की, अब कितना इज्जत करें? भेजा 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 तो भेजा, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, हमको क्यों देखना, है ना? दोस्तों, गलतफहमी के शिकार हैं आप, बहुत बड़ी। आप लोग वो सब काम करते हो जो इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए, नहीं करने के लिए होता है, और जो करने के लिए होता है वो नहीं करते। मैंने दो वीडियोस भेजे, बहुत सोच के भेजा, मैंने देखा उसका लैंग्वेज देखा, मैंने कहा कि 70% पल्ले पड़ जाएगा, 70% पल्ले पड़ जाएगा, ऐसा सोचा मैंने, अगर इस क्लास के लिए बिल्कुल। बाकी बैचेस में बहुत मुश्किल थी, बहुत कुछ नहीं समझ सकते थे, बट नाउ आई सी दैट आई हैव स्टूडेंट्स हु आर एस्पायरिंग टू लर्न मोर, तो मैंने कहा हाँ, शेयर करता हूँ। भाई लोग, ऐसे कैसे चलेगा? अच्छा, वो वाली रिकॉर्डिंग किसने देखी जो क्लास में प्रैक्टिस कराई थी? द ओल्डेस्ट पर्सन इन द क्लास, रुसाना। गलती से गलती बोल दिए सर. इट्स द टॉलेस्ट इन In the class. इन द वर्ल्ड, इट्स द टॉलेस्ट In इन द the वर्ल्ड। world. अच्छा, Yeah. इसका क्या मतलब निकला, इट्स टॉलेस्ट इन द क्लास? सर इट्स, सबसे लंबा है क्लास में सर. अच्छा कौन? चलो ठीक है, कौन? कल्पना? कोई तो होगा ही. हाँ तो कौन? यू सर. तो उसको इट कैसे बोलेंगे हम? ओ इट भी था सर, देखे नहीं थे. यही तो, यही तो हो रहा है। आप इस तरह से, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा आप लोगों को साइकिल पे बैलेंस करना आ गया, आप लोगों ने कहा हम आंख बंद करके साइकिल चलाएंगे, अब खाली बैलेंस करना आ गया हमें, इसलिए हम गिर नहीं रहे। आप गिरेंगे भी, जोर से चोट लगेगी। अब क्या तरीका है? आपने कह दिया इट्स द टॉलेस्ट इन द क्लास, और आपको महसूस नहीं हो रहा है? Tallest in the world. अब बताइए इट क्या है, कल्पना? Subject. अरे सब्जेक्ट है। बीमार होके कोई आए पढ़ा दे तो ऐसे करते हैं उसके साथ। हाँ? कह रही That is why I सब्जेक्ट है, don't want to be teacher. सब्जेक्ट है ये, कोई ऐसे करता है, बताओ यार, ये सब्जेक्ट है। अरे हाँ, इट क्या हो सकता है? इट्स द टॉलेस्ट इन द वर्ल्ड, मोस्ट प्रोबब्ली Welding. और समथिंग। Burj Khalifa. Burj Khalifa sir. कॉमन सेंस लगाना चाहिए, लैंग्वेज का अब Skyscraper. हमारे पास होना चाहिए। Building. Burj Khalifa. व्हाटएवर, या फिर हाँ। कुतुब मीनार या फिर यस, अब बिल्डिंग, लेट्स एंड इट देयर। building. ओके, नेक्स्ट नंबर Skyscraper. 2, योर्स इज। Yours is the same like. Same योर्स as इज द her brother. सेम एज माइन, तुम्हारा भी मेरे जैसा है। योर्स इज द सेम एज माइन, योर्स इज द सेम The एज same. माइन। ओके, शी इज यंगर, Then Younger than her brother. Then her brothers. शी इज यंगर देन हर ब्रदर्स। ओके, he looks like शी इज यंगर देन हर ब्रदर्स। He looks He looks like like He his looks father. like his father. his looks father. like his father. Okay. 5.
They're They're different from different from Different the from the others. other. The 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 others. others. Okay. और जब आपने पढ़ा योर्स इज द सेम एज माइन, तो आप क्या पिक्चर कर रहे थे? दो बच्चों को सुसु करते हुए? No, sir. Bag. Your bag is same as mine. चलो ठीक है, ठीक है। Yours is the same as. कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव्स नंबर 10 करें सेंटेंस। नहीं आ रहा होगा, मुझे पता है किसके किसके दिमाग में आया था, मुझे पता है। मैंने बस खाली Yours, आई जस्ट सबसे your पहले आपका profession ही is आया the होगा same as शायद। mine. Sir, योर्स सबसे इज द पहले your सेम आपका एज ही profession आया is the सर। same as mine. माइन। सौरभ, योर्स इज द सेम एज माइन। हाउ डू आई नो? ओके। नहीं, आप हंस सकते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि योर्स इज द सेम एज माइन के बाद आपका दिमाग चल रहा है, तो आपको समझ में तो आ रही नहीं इंग्लिश। बाकी आपके दिमाग का तो भाई ऊपर वाला ही रिस्पॉन्सिबल है, उसी ने दिए ये जज्बात आपके जहन में, मैं नहीं रिस्पॉन्सिबल उसके लिए। ओके, करेक्ट द सेंटेंसेस। नंबर 10, ही इज मोर ओल्डर देन ही लुक्स। बताओ। लास्ट वाला देखना चाहिए तो And the fourth is Robert Come on, Klein. guys, tell me, where is the problem? Yes. older than looks. चलो एक काम करो, आई गिव यू He's गाइस older than his looks. आई गिव यू गाइस 2 मिनट, जल्दी से करेक्ट करके आंसर करके मुझे भेजना प्राइवेटली। एवरीबॉडी विल सेंड privately, 2 minutes. Just send me as a text, sir, not a screen. Picture JPG. So you have to everybody is attending it on their computer, on their mobile phone, so you guys can. Good evening, sir. Hey Zafri, ये पक्का जाफरी था बचपन में, yours is the same as mine करने वाला, right? नहीं, आज कितना तारीख है? नहीं, अच्छी तारीख था। 16 जनवरी। 6 जनवरी। Very quick. Yes, sir, it was homework now. So do one more thing. इतना ही quickly go to the next page and take a screenshot and send me. किसका screenshot? Kalpana? Yes, sir. What Kalpana? You asked a screenshot. I didn't get. Rukaiya, why did you turn it off now? I'll send my page, sir. Yep. जल्दी करो। I have to हाँ। show you in camera. Okay. Yeah. Okay. Just a second, beta. Just a second. Just a second, Rukaiya. Just a second, Rukaiya. What do you call it? Pin. Yeah. Good job, beta. Okay, beta. Next page, beta. Good job. Good job, sweetie. I'm very happy. I was just doubting a little bit. I'm sorry. I know, sir. Thank you. Thank you for taking care of my doubt. You know that my intentions are always to help you guys, right? Even if when I doubt you guys, I don't doubt you like, we are not in a relationship that वो doubt तुम्हारे ऊपर है, वो doubt तुम्हारे बेहतरी के लिए होता है कि कहीं बच्चा गलती ना कर रहा हो, समझ रहा ना मेरे बच्चा, इस वजह से, ठीक है? तो टीचर की डाउट को अलग तरीके से देखा जाना चाहिए और दोस्तों के डाउट को अलग तरीके से देखा जाना चाहिए, ओके? हमेशा। और मुझे अच्छा लगा कि तुमने एकदम तुरंत यू टुक केयर ऑफ माय डाउट। वेल डन गर्ल। हमें look, Rukaiya, there have been only 2 occasions, I'll tell you. Remember once when I was saying to you that you need to focus when you were in the elementary course, I remember. Yes, I told you to focus on your studies and not anything else. And now, last 5-10 days, I've been thinking that I need to confirm with her, whether she's doing it again or, you know what I mean, right? So, yes, sir. good.
करेंगे उसको रुक जाओ यूसुफ काम करेंगे काहे के लिए लिखते हो ये सब लाइन लिख करके तुम मुझे बोलने के लिए मजबूर करते हो आरिश कुछ का कुछ लिख देते हो हाँ ऐसे नहीं करते बेटा आप ना धीरे धीरे सीख जाएंगे आपने कभी किसी को सुना है बोलते हो बेटा किसी अंग्रेज को इतना इंग्लिश सुनते हो यू आर सफरिंग फ्रॉम ए रनिंग नोज ऐसा No, बोलते sir. हुए सुना है You'll. ठीक है No, तो sir. हाँ बोल सकते हैं बेटा बोल सकते हैं यू आर सफरिंग फ्रॉम अ रनिंग नोज बोल सकते हैं लेकिन ए रनिंग नोज यू आर सफरिंग फ्रॉम ए रनिंग नोज ओके लेकिन नॉर्मली पीपल से आई हैव अ रनिंग नोज ओके यू हैव अ रनिंग नोज इंस्टेड ऑफ सफरिंग फ्रॉम याद करो आई एम सफरिंग फ्रॉम अ फीवर राइट एंड आई हैव अ फीवर कौन ज्यादा नेचुरल लगता Yes. है अब कौन सा नेचुरल लगता है कौन लोग I'm ज्यादा suffering from fever. हाँ, I'm suffering. I have नहीं a कोई नहीं fever. बोलता कौन बोलता है यार आई हैव अ फीवर बोलते हैं लोग हाँ तो खाली हमारे वो में था एप्लीकेशन एप्लीकेशन में सर फ्रॉम फीवर एप्लीकेशन I have में a cold. I I'm have a suffering fever. from fever. Yeah. I have a throat ache. Throat ache. In cold, when you have cold, you have throat ache. गर्दन में दर्द. Throat को गर्दन नहीं बोलते. गले में दर्द सर Throat is different. Gardan is different. Everybody send your answers quickly. I have sent on the Polygon. Mm-hmm. I have sent my page, sir. Yeah, Group. good. चलो सेंटेंस नंबर 1 एवरीवन बाकी लोग जो नहीं भेज पाए इतनी जल्दी देन आई विल से कि आप बहुत गलत कर रहे हैं एक तो आप आंसर किए नहीं होमवर्क नहीं किया जब करने के लिए कहा तो आप नर्वस होकर जान के देर कर रहे हैं ताकि पता ना चले ये गलत बात है आपको फटाक से करके भेज देना चाहिए शुडंट टेक सो मच ऑफ टाइम क्या होगा गलतियां होंगी तो आप डांट सुनोगे करेक्शन करोगे और क्या or always send privately. Sabaji, it took you so much time because you decided to write so many sentences. All you had to do was just cross or something on the books. oh sorry sir I read write in Why? group Why? because my mind is not working What right do you now mean? You are writing the sentence and then you're saying your mind is not working. You should have simply, I don't understand. It will definitely take so much time to write 10 sentences. I was Sir, expecting yes, people to just, now I think it might be easier than of course. I do. That's why I put the screenshot of this exercise in the group. Okay. Can we check everybody? Sanjeev Babu, Vikas Babu. You guys are boycotting me or what? After such a long time, first time I am in the class, after a long break, after being sick, instead of a word of sympathy, you guys are simply ignoring me, neglecting me. I don't understand this. He's older than he looks. He is older than he looks. Right. Looks. My daughter saw a photo of me from 2017 or 2018. And she was like, you looked this young in 2018. I said, yeah, 6 years have been really hard. You know, I look like a guy in my 20s in that photo. Jessica is as tall than her mother. Jessica is as tall as than her mother. I think बाकी both लोग is correct. As tall as her mother or Jessica taller than is her mother. as tall as her mother. Okay, Arish, you can leave. No problem, sweetheart. No need to say sorry. You must have some work, I think. That's why you're leaving, right? Yes, sir. No, Thank you. I will no. watch the recording. Yeah, sure. 2. Jessica is as tall as her mother. Jessica is as tall as her mother. 3. London is more expensive than Vienna.
London is more expensive than Vienna. No. Oxford is one of oldest universities in Europe. The oldest. Oxford is one of the oldest university in Europe. अरे अरे संजीव बाबू क्या कर रहे हो? क्या चेंज करेक्शन क्या किया? ये बता दो. Sir, Oxford is one of the oldest universities in Europe. Well done. Don't pronounce the. Say Oxford is one of the oldest. Okay, sir. Oldest starts with a vowel sound. So you should not say the, you should say the. The is pronounced the when the next word is a word with a vowel sound. The oldest. The oldest. संजीव रूल समझ में आया बेटा? Yes, sir. What is the rule? When I use the with vowels, then we said the oldest, the elephant, and when I use verbs, consonants, then we pronounce the like the man, the cow. Absolutely wrong. No. Okay, now I will give you, what about morning, evening? The morning, the evening. ओके तो बेटा जब आपने दी ओल्डेस्ट बोला था तो ऐसे द टॉलेस्ट बोल के बता देते, तो चेंज का ही कर दिया एकदम कॉन्टेक्स्ट, Okay. है ना? बाकी इसका Yeah. सुपरलेटिव से मामला नहीं है. द इज प्रोनाउंस्ड दी व्हेन द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद अ वॉवेल साउंड. ओके. Yeah. Number 5. He isn't as intelligent than his sister. He isn't as intelligent as his sister. As He's, his he's Lallu, right? He isn't as intelligent as his sister. Yeah, I'll tell you, Nandini was your classmate, Rajafri. Nandini's brother isn't as intelligent as his sister. I taught him for a few days. It was very difficult to help him understand anything. 6. his younger brother, sir. He's, no, Her younger brother. no, the older. Oh. The one who sits at the shop. Yeah. Yeah, he's not very clever when it comes to studies. 6. This This is is more hard than I This expect. this is harder than I expect. जितना मुझे लगा तो उससे ज़्यादा. This is harder than I expected. 7. Who is the who is the most rich richest man in the world. man? Most richest man in the world. hey, blunder? Kalpana. Yes, sir. Yes, sir बोलना है. Oh, sorry. Who is the most richest man in the world? richest man in the world? Savaji. Yeah, more. Savaji. What, sir? What? नहीं नहीं कुछ नहीं, रहने दीजिए. अब दही खाने का मन कर रहा, वहां से तो भेजेंगे नहीं, तो रहने दीजिए. Number 7, everybody. Who is the most? Who is the richest person? Exactly. Bhai Saab, most is used with long adjectives, right? Like intelligent, expensive. This is a single syllable adjective. So the superlative is richest. Yes. So who is the richest man in the world? Kalpana, did you understand? Yes, sir. एक रूल समझ में आया कि खाली खाली रिचेस तक रह जाएगा ये बात? Understood, sir. The adjective is a single syllable adjective. Then don't you use do not need more or most to change into comparative and superlatives. superlative.
8. Everything is more cheap in my country. Everything is more cheaper than Everything is Everything is cheapest in my country. अरे भाई ये Everything everything is cheaper than. Then तो कहाँ हो रहा है? There is not आप दोनों something का झगड़ा सुनना है मुझे। हाँ, कल्पना और सभाजी जाइए, दोनों शुरू करिए, जरा करिए तो जरा। Everything is more cheaper in my country. ठीक है गायब कल्पना। हो गई। आपका पेज गायब हो गया सर। हाँ तो वो तो गया, लेकिन आप उनकी बात का जवाब दीजिए। सभाजी, एवरीथिंग इज More cheap in More my cheaper in. country. Everything is आप दोनों के दोनों हिंदी बोलना शुरू करिए। जो बात बोल रहे उसको हिंदी में बोलिए। मेरे देश में सब कुछ सस्ता मिलता है। नहीं सब कुछ अप्रिशिएट कर सस्ता है। पा रहे, जो बात लिखा है उसको अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे। आप बोले सभाजी। More cheap. मेरे मेरे देश में ज्यादा सस्ता भी, इससे ज्यादा सस्ता मिलता है। इंग्लिश में बोलिए। yes. Everything is more cheaper than in my country. Sorry, not than. मैं रहूंगा Sir, आपके साथ 2-3 I मिनट। आप want बोलिए। everything is more cheaper is in my country. Everything is cheapest in my country. हो गया। ठीक है। अब देखो आप लोग अपनी अपनी गलतियां सुधारो। पहले सभाजी, अभी पिछले सेंटेंस में क्या बताया? मोस्ट रिचेस्ट क्यों नहीं सही हो रहा था? आपने क्या किया था उसको 7 में जब आप पूछी थी यस सर, तो मैंने कहा रहने दीजिए। फिर क्या होना था वहां पे? सर आप बोले कि छोटा एडजेक्टिव है इसलिए मोस्ट नहीं लगेगा, चीप रिचेस्ट लगेगा। क्या और इसके एग्जांपल दे सकते हैं? हु इज द नहीं सेंटेंस नहीं, एग्जांपल दीजिए ना एडजेक्टिव के, कि सुपरलेटिव कैसे कर, सुपरलेटिव चेंज करने की बात हो रही है ना, तो एडजेक्टिव्स के एग्जांपल दीजिए, छोड़िए सेंटेंस। रिचेस्ट, चीपेस्ट, मोस्ट ब्यूटीफुल। देखिए ठीक है, आगे बोलते हैं ये। ठीक है आगे बोलिए। इट इज सुपरलेटिव। सही है सही है, आगे बोलिए। बिगेस्ट, ठीक है, स्मॉलेस्ट। तो क्या रूल क्या बना मैम? शॉर्ट एडजेक्टिव में ईएसटी लगता है। ठीक है, और आगे मोर का बताइए। यूज नहीं, मोस्ट का यूज नहीं होगा। लेकिन अभी आपने मोर और चीपर बोला, यस लगातार सर। बोला। मैं दाद देता हूं, फिर आप खुद अपना रूल बनाइए, खुद उसको तोड़िए। कितना अच्छे से रूल समझ रही हैं और समझा भी रही हैं, फिर भी बोल रही हैं मोर और चीपर, और एक बार नहीं। अरे बोल दिया गलती से, ठीक है, उसके बाद तो एहसास हो जाना चाहिए कि भाई अभी मैंने क्या बोल दिया, मोर भी बोल दिया, चीपर भी बोल दिया। अब करेक्ट कर लीजिए। एवरीथिंग इज, Is it right, sir? Everything is cheapest in my country. आपको तो मैं अलग से देखूंगा, रुकिए अभी आप। Okay. sir. Everything is cheap in my country. संजीव, Cheap in my country. Yes, sir. आपके बात में कुछ, आप लोग को ये अभी तक एहसास नहीं हुआ कि जो आप कर रहे हैं उसका अलग अलग एंगल, पॉजिटिव का क्या मकसद होता है? ऐसा नहीं है कि हम नहीं बोल सकते एवरीथिंग इज चीप इन माय कंट्री। हम ऐसा नहीं कि हम नहीं बोल सकते एवरीथिंग इज, सब पैसे पहले सभा जी को सुनने तो दो। सभा जी करेक्शन करिए ना, एहसास हो गया तो। एप्लीकेशन, एवरीथिंग इज हाँ, आपका प्रॉब्लम क्या है ना, कि आप पहले क्या जानती हो उसको सोच के बोल रही हैं, जबकि मैं चाहता हूं कि जो मैं अभी एहसास करा उसको सोच के बोलिए। फंसी आप वहां पे हैं। आप अभी जो एहसास की उसको खाली फॉलो नहीं कर रही हैं, आप
इसके अलावा सोच रही ये सही होगा वो गलत होगा, मत करिए ना। जितना एहसास किया वो खाली कर दीजिए, सही, बात खत्म है। आप लोग को ना ये सुन के जज करने का जो आदत है ना कि मेरे को सही लग रहा है, मेरे को गलत लग रहा है, मत करा करो। आप लोग जज नहीं बनो कभी सही गलत के। आपको जो बताया गया वो सही कर लो, बात खत्म। बाकी बोलो होगा गलत, Sir, हमको नहीं फर्क पड़ता है। everything is cheaper in my country. बात खत्म हुआ। Sir, everything is cheaper in my country. बस इतनी सी बात थी। अभी अब संजीव कह रहा है एवरीथिंग इज चीप इन माई कंट्री, क्या कहना है आपको? सबा जी, एवरीथिंग इज चीप इन माई कंट्री, सब संजीव ने बोला। योर रिएक्शन? No, it is comparative sentence, sir. Other country to my country. So, Very here nice. is I liked comparative. your answer very much. Thank you very much. Very good answer. Guys, Sanjeev beta, if we are comparing the things, the price of things in two different countries, then we need to compare. And if we are Yes, speaking, sir. if we are speaking in an Now I absolute got it. term, in absolute term, अपने तरीके से बोले, अरे इंडिया में सब सस्ता है, कोई टेंशन नहीं है। Everything is cheap in India. Everything is cheap in बिहार शरीफ। मैं कंपेयर नहीं कर रहा कि आपके छपरा से महंगा है कि नहीं, सस्ता है कि नहीं। ओके, एवरीथिंग इज चीप इन बिहार शरीफ। पटना से सस्ता है कि नहीं, मैं कंपेयर नहीं कर रहा। एवरीथिंग इज चीप इन बिहार शरीफ। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये अपने आप में एक सेंटेंस है वेयर देयर इज नो कंपैरिजन, एंड इफ यू कंपेयर देन यू से एवरीथिंग इज चीपर। तो संजीव, द सेंटेंस इन माय कंट्री सजेस्ट दैट हियर somebody is from another country, the person you are talking to, तो आप कहेंगे हमारे कंट्री में हर चीज आपके देश से, मान लो आप कहीं गए घूमने, वहां जाके हर चीज महंगा लग रहा है, तो आप क्या बोलोगे? एवरीथिंग इज चीपर इन माय कंट्री। तो बस My ये country. कॉन्टेक्स्ट समझ लेना। ओके, देयर इज नथिंग राइट और रॉन्ग विदाउट अ कॉन्टेक्स्ट। द ग्रेट व्हाइट शार्क इज द, हाँ सॉरी कल्पना, आप कह रही थी चीपेस्ट चीपेस्ट चीपेस्ट। Sir, I didn't get that they are comparing from my country or another country. तो ये मोर का क्या लेना देना था यहाँ? मोर क्यों यूज हुआ है अगर आपको नहीं एहसास है इस बात का तो? कल्पना, मोर क्यों लिखा था? I thought it is a wrong. भाई कोई वजह से ही ना कुछ लिखा जाता है। रॉन्ग की भी कोई वजह होती है कि रॉन्ग ऐसे ही पैदा हो जाता है दिमाग में? रॉन्ग की वजह होती है, बस वही लॉजिक को करेक्ट करना होता है। हम इसीलिए, आप सही कह रही हैं कल्पना, आप ना एक्चुअली ऐसा सोचती हैं कि कुछ ऐसी गलत होता है। कई लोग लॉजिक नहीं जानते, गलती के पीछे लॉजिक होती है। वो लॉजिक को फाइन ट्यून करना होता है ताकि वो गलत ना रह जाए। जैसे कभी कभी मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो सेंटेंस बोलते हैं और वो एक इंपॉर्टेंट वर्ड या तो वर्ब वर्ब इंपॉर्टेंट वर्ब ओके छोड़ के बोल रहे होते हैं। इतना हाइपर होते हैं इमोशनली, इतने ज्यादा इमोशनल रहते हैं, 3 बार 4 बार 5 बार उस सेंटेंस को बोलते हैं, वो वर्ब हर बार ड्रॉप करते हैं और उनको एहसास नहीं हो रहा होता है। तो जब आप इतने इमोशनल होके कोई चीज करने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा चांस आप गलत करेंगे। इमोशंस डोंट हेल्प, यू नो। आपको थोड़ा प्रैक्टिकल सेंसिबल होकर के अपने इमोशंस को कंट्रोल रखते हुए समझ के बात करनी होती है। कई बार मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता हूँ, नर्वसनेस आ जाती है, एक्साइटमेंट आ जाती है, तो एक से एक ब्लंडर्स होते हैं। तो सही कह रही हैं कल्पना कि कई ऐसे स्टूडेंट जो सोचते हैं बस गलती है, ऐसी गलती है। क्या गलती है उसमें ये नहीं पूछने के गलती क्यों है, क्या क्या सोच के ऐसा बोला है। तो मोर मतलब ज्यादा तो होता है, कंपेयर करते हैं तो एवरीथिंग इज मोर चीप इन माय कंट्री, कई लोग बोलेंगे, मीनिंग है। अभी इसके गलती ये है, इसको करेक्शन ये कराना चाहिए कि देखो, जो तुम मोर चीप बोल के उसको बोलना चाह रहे हो ना, ज्यादा सस्ता, तो ज्यादा सस्ता बोलने का तरीका है चीपर बोलना, ये समझाया जाएगा। ये थोड़ी कि मोर गलत है, ये बताना होगा कि मोर चीप बोल के जो तुम आइडिया एक्सप्रेस करना चाह रहे हो ज्यादा सस्ता का, वो ज्यादा सस्ता का आइडिया कैसे एक्सप्रेस किया जाता है? चीपर से एक्सप्रेस किया जाता है। कल्पना ये बात नहीं समझी, बोली मोर चीप गलत है, चीपेस्ट सही है, लो। और उनको एक और रीजन मिला होगा, इन जो लिखा है ना, तो सोच रही होंगी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था इन चीपेस्ट है, तो शायद वो भी सोच गई होंगी।
दोस्तों एवरीथिंग इज चीपेस्ट इन माई कंट्री अपने आप में सेंटेंस करेक्ट हो सकता है, ठीक है, कि हर चीज मेरे कंट्री में सबसे सस्ता है, अपने आप में एक करेक्ट सेंटेंस हो सकता है। दिस पर्सन इज नॉट एक्सप्रेसिंग दिस आइडिया एवरीथिंग इज मोर चीप इन माई कंट्री। दिस पर्सन इज ट्राइंग टू कंपेयर कि मेरे देश में चीजें सस्ती हैं यहाँ से ज्यादा, जो दूसरा देश उसके तुलना में, तो इस वजह से चीपर इज द राइट वर्ड। बाकी दैट इज अ डिफरेंट सेंटेंस। एवरीथिंग इज द चीपेस्ट in my country. Now, number 9. The Great White Shark is the most dangerous हालांकि shark. उसका अरेंजमेंट थोड़ा चेंज कर देंगे। एवरीथिंग इन माई कंट्री इज द चीपेस्ट। नंबर 9. द ग्रेट व्हाइट शार्क इज द मोर डेंजरस शार्क इन द वर्ल्ड। Most dangerous shark in the world. Is the most dangerous shark in the world. Number 10. Your idea is Much more, better than mine. Your idea is much more better than mine. Better than mine. Better. मैं स्माइल करूंगा जब तक आप सही नहीं करते अपने आप को, क्योंकि और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। एक ही चीज को मैं बढ़ाऊंगा थोड़ी ना बार बार। आपको देखना है कि आपने वो सीखा था ना, तो क्या कर रहे हैं आप, अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं। कल्पना, सभा जी। Yeah. Your idea is much more good than mine. सभा जी, नंबर 10। Your idea is much Your more idea good. is much. Your idea is more best than mine. Your idea is More much better than mine. सभा जी yes, sir. बोलिए। Your idea is better. Good, better. Yes, your idea is good. Sorry, better than mine. ओके, एक एक वर्ड को एनालाइज करते हैं आप लोगों के लिए। मोर गुड मतलब ज्यादा बढ़िया, मोर गुड होता है ना, लेकिन मोर गुड लॉजिकली ऐसा होना चाहिए था, लेकिन इंग्लिश का अपना रूल है कि एडजेक्टिव में, हमारे यहाँ एक ही एडजेक्टिव होता है, उसी में हम लोग ज्यादा लगा के काम कर लेते हैं। तुम्हारे बाल ज्यादा लंबे हैं, यानी मेरे से, राइट। तुम्हारा घर मेरे से ज्यादा बड़ा है, ठीक है। कभी कभी ज्यादा ना भी लगाए तो बोल देते हैं तुम्हारा घर मेरे से बड़ा है, यानी कि वो वही हो गया, राइट। लेकिन इंग्लिश में आपको एडजेक्टिव को चेंज करना पड़ता है, बिग के जगह बिगर बोलना पड़ता है। पहले कंपेयर, लैंग्वेज को कंपेयर कर लो कि हिंदी और इंग्लिश में कितना बड़ा फर्क है, कि हिंदी में कोई एडजेक्टिव में बदलाव करने की जरूरत नहीं है, वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत है। He is She is more beautiful than me. beautiful than me. तो मोर ब्यूटीफुल में ब्यूटीफुल में कोई चेंज करना पड़ा नहीं, एक नया वर्ड लगा दिया मोर, ब्यूटीफुल का चेंज तो नहीं करना पड़ा ना, उसके बगल में एक वर्ड लगा दिया ज्यादा ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, राइट। तो जब ये बात समझ में आ जाए आपको कि कंपैरेटिव होता क्या है, मैं इतने दिन से कर रहा हूं, लेकिन मैं एक बड़ी वजह यह है कि आप लोग अब मेरे को ग्रांटेड ले रहे हो, ठीक है, कि जितनी बार भी हम नहीं करेंगे सही सर तो है ही बताएंगे मुझे, तो ऐसे नहीं चलेगा दोस्तों, ये गलत बात है। आप अपना Good काम afternoon. करें सही तरीके से, ग्रांटेड ना लें टीचर को। हेलो यास्मीन मैम। Hello, sir. ये तो पहले बात है, ये मोर गुड को तो समझो। मोर गुड मतलब होता है ज्यादा, हिंदी में बेहतर बोलते हैं, बेहतर। तुम्हारी हैंडराइटिंग मुझसे बेहतर है, ठीक है, तो वो मोर गुड हो गया पहले। मच का पर्पस क्या है, उस मोर गुड को एम्फेसाइज करना, बहुत बेहतर हिंदी में बोलते हैं, बहुत बेहतर। बेहतर मतलब थोड़ा सा ही बेहतर हो सकता है, और बहुत बेहतर, तो ये मच का फंक्शन है उस बहुत को एम्फेसाइज करना, उस बेहतर को एम्फेसाइज करना। इतना सारा बताने के बाद समझ में आया गलती कहाँ है, सबाजी और कल्पना। और आप कल्पना, आप डायरेक्ट इस क्लास में हैं, समझ रही हैं, प्री इंटरमीडिएट में आप समझ रही हैं, और ये चीजें एकदम नहीं एक्सेप्टेबल थी मुझे। आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू
कि आप ऐसा इसको करेंगे, इतना खराब करेंगे। आई एम रियली रियली सरप्राइज। आप कैसे इंग्लिश में बात कर रही हैं इतने समय से? कौन आपको कोई फीडबैक नहीं दे रहा जब आप इस जगह पे गलतियां कर रही हैं तो? Your idea is much better than mine. जी, योर आइडिया इज मच बेटर देन माइन। क्योंकि आपका मोर गुड सही नहीं है, इसलिए क्योंकि इंग्लिश में गुड का कंपैरेटिव मोर गुड नहीं होता, क्या होता है? बेटर होता है। तो बस मोर गुड हटा लीजिए, गलती खत्म हो गई। योर आइडिया इज मच बेटर देन माइन। आपका आइडिया मेरे आइडिया से बहुत बेहतर है। थोड़ा बहुत नहीं बेहतर है, बहुत बेहतर है। सभा जी कहाँ फंस रही थी? क्या क्लैरिटी नहीं आई आपके समझ में? प्लीज शेयर करिए मुझसे ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। Sir, I thought it is comparative sentence. Your idea is better than mine. वो तो But ठीक है, तो वो now मोर गुड को तो आपने करा ही बेटर। मच को क्यों ड्रॉप किया आपने? किस हिसाब से ड्रॉप किया? ये जवाब है, जवाब चाहिए मुझे। sir, I can't reply this because I didn't understand what I saying. मच का पर्पस नहीं समझ पा रही हैं अभी तक? Much better. आप थी उस क्लास में जब मैंने कहा था अमिताभ बच्चन इज टॉलर देन अक्षय कुमार, बट अमिताभ बच्चन इज मच टॉलर देन आमिर खान, गोविंदा। Sir, तो I watched class recording, sir. तो तो क्या वो मच का क्या मकसद है? कितने देर में ये बात हम लोग समझेंगे कि मच का क्या फंक्शन है वहां पे? अगर आप कहते हैं शी इज ब्यूटिफुल, आप कहते हैं शी इज वेरी ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल को एम्फेसाइज करना चाहते हैं कि खाली सुंदर नहीं, बहुत सुंदर है, शी इज वेरी ब्यूटिफुल। तो आपने वेरी वर्ड क्यों यूज किया? ब्यूटिफुल को एम्फेसाइज करने के लिए। Guys, तो वो correctly, मेरे yes. से सुंदर है, शी इज मोर ब्यूटिफुल देन मी। लेकिन वो जो फर्क है ना वो बहुत बड़ा है। कैसे मैं बताऊं? शी इज मोर ब्यूटिफुल देन मी, लेकिन ये जो मोर ब्यूटिफुल देन है वो बता रहा हूं कि बहुत थोड़े बहुत मोर ब्यूटिफुल नहीं, बहुत मोर ब्यूटिफुल। भाई कैसे बताऊं मैं? बताइए सबा जी। Most beautiful. फिर गड़बड़ कर He दिया। is much beautiful than me. क्या करते हो आप लोग यार? मोर ब्यूटीफुल मतलब तो है ही मोर ब्यूटीफुल। आप कह रहे हो मोर Yes, yes, ब्यूटीफुल yes. को एम्फेसाइज करना है तो मच लगा रहे हो, मोर गायब कर But दे रहे हो। क्या लॉजिक? कैसे that is more सीखते हो आप लोग? beautiful. यू गाइस नीड टू Much. गेट योरसेल्फ टेस्टेड और व्हाट? आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन हियर। क्या हो रहा है ये? आपको मैंने कहा मोर ब्यूटीफुल को एम्फेसाइज करना है, तो आप मच लगाओगे तो मोर ड्रॉप कर दोगे। तो Much more कंपैरेटिव हुआ beautiful. किधर वो? Okay, okay, sir. Much more beautiful. Is अब जरा much more रुकिए। beautiful than me. देखिए मैम, मैं बहुत अभी बुरा फील कर रहा हूं, इसलिए बुरा फील कर रहा हूं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप गलतियां कर रहे हैं। जब ऐसी सिचुएशंस आती है ना तो वो बातें याद आ जाती हैं इंसान को जो जो उस समय उसको पता थी कि ये मुश्किल में डलवाएंगी। कहाँ है हम लोग? देख रहे हो आप? देखना यहां पर एलिमेंट्री कोर्स। सबा जी यहां आइए, एक्सरसाइज 2। सॉरी, मैं लेके आ रहा हूं वो एक्सरसाइज। कब 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 खत्म होगा हमारा प्रॉब्लम? ये ही इजंट वेरी क्लेवर, हिज सिस्टर इज मच क्लेवरर। यहाँ आइए। Actually, there is a dedicated exercise to use that practice with much. Uh, yeah. Dedicated exercise. New York is older than London. No, it isn't.
न्यूयॉर्क इज मच मोर मॉडर्न। हर जगह मच आएगा, हर एक सेंटेंस में। बताइए मैम, सवा मैम। लेकिन पता है, जब आप ये कोर्स कर रही थी, आप किन लोगों के साथ कर रही थी जिन्होंने आपको कहा था कि आप फंस जाती हैं? अभी आप फंसी हुई हैं सभा जी, ठीक है? अभी आप इंग्लिश सीख नहीं रही हैं, अभी आपको स्पेशल अटेंशन नहीं मिल रहा है। इसके लिए आपको स्पेशल ग्रेटफुल फील नहीं करना चाहिए कि आप ऐसे क्लास में हैं जहां आपको स्पेशली टाइम दिया जा सकता है। आप फंस गई हैं, इस वजह से आपके दिमाग में नहीं है ये। नहीं तो आप ये एक्सरसाइज करती तो आप कैसे नहीं होती कॉन्फिडेंट कि क्या करा जा रहा है? बताइए मुझे। सोल इज बिगर देन बेजिंग, एक ने कहा। बी ने कहा नो इट इजंट, सोल इज मच स्मॉलर। तो बहुत छोटा है उससे। टोक्यो इज चीपर देन बैंकॉक, नो इट इजंट, टोक्यो इज मच मोर एक्सपेंसिव। एक ने कह दिया टोक्यो जो है बैंकॉक से सस्ता है, दूसरे ने कहा पागल हो गए हो क्या, टोक्यो बहुत महंगा है। किससे? बैंकॉक से, ऑब्वियसली। क्या ये एक्सरसाइज है हमारे कोर्स में? हमने इसको 2 बार कराया, आपने इस कोर्स को 2 बार किया सौरभ जी? प्लीज बताइए मुझे, मैं क्यों अभी फ्रस्ट्रेटेड फील ना करूं इस चीज के लिए? हिज्जे करके समझिए चीजों को, हिज्जे करके, कि एक एक वर्ड का पर्पस क्या है। एक है कंपैरेटिव फॉर्म, और इसको फंसना नहीं कहते हैं सभा जी, इसको कहते हैं टीचर का स्पेशल अटेंशन होना। कि नहीं, आपको मुश्किल हो रही है तो हम आपको इग्नोर नहीं कर रहे, हम आपको सिखा रहे हैं, इसके बावजूद भी आपसे गलतियां हो रही हैं तो। इट इज अ क्वालिटी दैट वेरी फ्यू क्लासेस हैव, ओके? And it is something that a good student will always appreciate, and a bad student will call it फंस जाना। जोहानिसबर्ग इज सेफर देन केप टाउन, जोहानिसबर्ग केप टाउन से ज्यादा सेफ जगह है। क्या आप बकवास कर रहे हो? बहुत ज्यादा डेंजरस है ये जोहानिसबर्ग। much more dangerous. ऐसा बहस हुआ है कभी कभी? किसी बात से एकदम ऑपोजिट ओपिनियन हो गई किसी आदमी के बारे में, किसी ने कुछ बोला और आप बिल्कुल उल्टा ऑपोजिट ओपिनियन पे एक्सप्रेस कर दिए। वही सिचुएशन है यहाँ पे। किसने बोल दिया कि फलना आदमी ज्यादा कमाता है चिल्ना से? पगला गए हो, फलना बहुत कम कमाता है चिल्ना से, है ना? ओके। तो आप प्रैक्टिस करना फलना और चिल्ना करके प्लीज। एंड आई एम शेयरिंग दिस पेज विद यू गाइस। नहीं, मैं बता रहा हूँ कुछ चीजें आप लोग ऐसे कर जगह पर ले जाते हो मुझे, जहां पर मुझे लगता है कि आप करते कैसे हो, क्या करते हो यू गाइस। एक तरफ मुझे ये भी लग रहा है कि आप पूरे डेडिकेटेड रहते हैं, फिर ये होता कैसे है? डेडिकेटेड लोग के साथ ये कंफ्यूजन कैसे आती है? इसका मतलब आप हिज्जे करके नहीं समझते, एक एक चीज को वैल्यू नहीं करना चाहते कि उसका मकसद क्या था, इस मच का मकसद क्या था इस सेंटेंस में। Your idea is much more good than mine. The only problem is more good is not the correct comparative in English. The correct comparative is better. Your idea is better than mine. Now 11. How old am I? और आप कल्पना ध्यान दीजिए, ओके? इस तरह की गलतियां अगर आप कर रही थी इतने समय से और कभी आपको फीडबैक नहीं मिला, तो इससे यह भी पता चलता आप किन लोगों से बात कर रही थी इंग्लिश में। क्योंकि जहां तक हमें पता है, अगर आप किसी से बात करते हैं और आप हिंदी में, कोई आपसे हिंदी में बात करो और खराब हिंदी बोलो, तो आप उसको फीडबैक देते हो, राइट? और वो उसको एक्नॉलेज करता है। इसी से ग्रो होते हैं ना हम लोग। लैंग्वेज लर्निंग में इस बातचीत का क्या मकसद है? व्हेन यू टॉक टू समबडी हु स्पीक्स बेटर देन यू और इज अ नेटिव स्पीकर ऑफ इंग्लिश, एंड you listen to them and keep observing how they speak. You observe and notice those phrases and patterns that they use, and you start using them and you start to sound more natural. Another thing is, when you make some obvious mistakes, then sometimes your listeners give you a feedback that don't say it this way, say it that way. And then you say, oh, okay. You ask a question if you don't understand the logic, why? And if you understand the logic, you start to just copy and repeat that thing.
So please guys, मैं ये बताना चाहता हूं कि आप एक जगह सही एक जगह गलत इसलिए होते हैं क्योंकि आपको पैटर्न्स का एहसास नहीं होता। सौरभ बेटा, आपने भी कह दिया था एवरीथिंग इज चीपेस्ट इन माय कंट्री। तो मुझे बताना कि इससे मोर चीप वाले बोलने वाले को पागल कुत्ते ने काटा था कि मोर चीप बोल रहा था। ये गलती बोली है, पागल वाली बात नहीं बोली उसने। बेटा, इंग्लिश की गलती होती है जब हमें इंग्लिश का रूल नहीं पता होते हैं, राइट? तो किसी को नहीं पता है रूल तो वो मोर चीप बोल देगा गलती से, यही ना होगा ज्यादा से ज्यादा। लेकिन मीनिंगफुल बात तो होनी चाहिए ना, ये मीनिंगफुल बात है। और जब हम कह देते हैं एवरीथिंग इज चीपेस्ट इन माय कंट्री, तो ये बात बदल जाती है। करेक्ट करने के चक्कर में एक दिन किसी ने ना को हाँ करवा दिया था। मैंने कहा, उसने एप्लीकेशन लिखा कि मैंने खून नहीं किया है, करेक्ट गलत इंग्लिश में लिखी, तुमने सही करने के चक्कर में एक्सेप्ट करवा दिया कि मैंने खून किया है। ये करेक्शन है कि करेक्शन में खून नहीं किया है, मेंटेन रहना चाहिए पहली बात, मैसेज नहीं बदलना चाहिए। आप लोग हमेशा ऐसा करते हो, जब भी करेक्ट करने की बात आती है कब पे लत्ते हो जाते हो और बात का मतलब बदल देते हो। आप उन हिस्सों पे फोकस करो जो बताई गई हैं, पॉइंट टू पॉइंट। प्लीज डू द एक्सरसाइजेस अगेन and ask yourself if you have confusions. Talk to me tomorrow. Now, how old am I? This is a fun exercise. Read and decide the answer to these questions. So, first of all, read everybody. I have two sisters, Jenny and Samantha, and two brothers, Henry and Chris. I have two sisters, Jenny and Samantha, and two brothers, Henry and Chris. All right. Henry and Chris, two sisters. Jenny is 20. Samantha is 6 years younger than Jenny. Okay. And 2 years older than Chris. Okay. And Chris is 4 years younger than me. And he is 8 years younger than Henry. This is puzzle of This is not a puzzle at all, Kalpana. This is only test of English. uh, All you have to do is be able to do I think addition this is in puzzle of mathematics. SSC or bank clerk. I'm so sorry that you guys feel this way. No, sir, I This did is that. That is why I basic said maths so. question, basic addition and subtraction question, guys, and understanding of English. If it was written in Hindi, the complication would be much greater, I would say. Much greater. Notice the complication would be much greater comparative। इसलिए उसको एम्फेसाइज करें, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता अगर हिंदी में होता तो। ये इंग्लिश में है तो कॉम्प्लेक्सिटी आसान इजी है, द लैंग्वेज इज द चैलेंज। ओके, बिकॉज इट इज इन इंग्लिश। सो डू दिस इन 2 minutes and send the answers. Use the chat box to write the answers. All you have to do is put the question number and put a number. Question number one, how old am I? A number. Who is the youngest in the family? Oh, the name. Okay. Okay, got it. Do this exercise. You can do it. Wow, after 6 days, I am in the condition to be able to speak this much. My head is still pretty heavy.
सबकी उम्र खाली लिख दी तुम लोगों ने, नंबर। चलो क्रिस की उम्र बताओ, हाउ ओल्ड इज क्रिस? हाउ ओल्ड इज जेनी? हाउ ओल्ड इज समंथा? 14. हाउ ओल्ड इज हेनरी? हाउ ओल्ड इज मी? जिशान, व्हाई स्ट्रगल दिस मच? पहला लाइन लिखा है जेनी इज 20, समंथा इज 6 years यंगर देन जेनी। तो बताओ समंथा की उम्र, जिशान। 14. Jenny is Samantha 20, is Samantha. No, no, Saurav, I didn't ask you. I asked Jishan. Jenny is 20, Samantha is 6 years younger than Jenny. Jishan. Yes, sir. Samantha, how old is she? 16 years, sir. 16 पढ़ years ले old. सेंटेंस, पढ़ ले सेंटेंस, पढ़ ले फिर से। बोल के भाई म्यूट करना बंद कर, भाई म्यूट करना बंद कर, अभी 1-on-1 कॉन्वर्सेशन में है तू। हाँ, जेनी इज 20। पढ़ो भाई। Jenny is 20. Samartha is 6 years younger than Jenny. तो समंथा कितने साल की है? 26, sir. 26। हिंदी में पढ़ो इसको। सर जेनी 20 साल की है और समर्था 6 साल। खा पका रहे हो तुम लोग सब, ग्रांटेड लेके बैठ गए हो यार। मेरी गलती है। मैं इतना ज्यादा भरोसा करता हूँ कि तुम लोग अपना काम कर रहे होगे। कोई 6 years यंगर नहीं समझ पा रहा तो मैं क्या ही बोलूंगा। हाँ, वो उसको नहीं समझ में आ रहा, मैं क्या करूँ? वो क्या कर रहा है? वो उसके पास दिमाग नहीं है? बहुत तेज दिमाग का बच्चा है, लापरवाही कर रहा है। भाई, यू आर यंगर देन मी और आई एम यंगर देन यू, पहले ये डिसाइड कर ले जिशान। यू आर यंगर देन मी और आई एम यंगर देन यू, जस्ट पहले ये डिसाइड करो जल्दी से। आप सर। सेंटेंस बोलो। आप सर। I have 2 sisters. सेंटेंस बोलो। यू आर यंगर देन मी। आई एम यंगर देन यू, है ना? No, I sir. wish it We was are younger than you. I wish it was true though. काश ऐसा होता यार। Yasmin ma'am, wanna tell me if you are younger than me or I'm younger than you? Sir, I think Jenny is 20 and Samantha is 14. Cheris is 12. I Me, already sent, sir, but this is khich. Jenny is 20. Samantha is 16 14. and Henry 4. And Harry is 20. His age is also 20. Is they twins? no, Andy is 24, I think. And Chris is 12. And me is 19. बहुत आसान है। No, Chris is 16, I think. What reason? क्रिस अच्छा, सौरभ कैमरा पे आ जाओ, नहीं तो अगली बार क्लास से बाहर हटा देंगे, जहां अगली बार रहा कैमरा से ऑफ। ठीक है। Jenny is 20, Samantha is 6 years younger than Jenny. Samantha is 6 years 16, younger हाँ। than Jenny. भाई Zishan, I'm not 14. younger than you. Okay. Samantha is 6 years, हाँ वही। Samantha is 14. Samantha is 6 years younger than Jenny, तो obvious है ना भाई, she's 6 years younger, so -6 is 14, and 2 years older than Chris. Samantha is 2 years older than Chris. It means Chris is Chris is 14.
Yes, sorry, 20. Player 12. Calm down, ma'am. 12, Calm 12, down. 12, 12, Excitement is never good. Excitement is never good. 12, Okay. We all 12, get excited and make mistakes. Yeah. 2 years older than Chris. So Chris is 12, obviously 12 years 12. old. Chris is 4 years younger than me. So I'm 16 and 16. he is 8 years younger than Henry. It means Henry is also 20. It means Jenny and Henry are twins. Yes, sir. What I said, sir. But खिचपिच बना के दिए थे. Uh, अच्छा, Henry 20. answer. In How old, your telegram, sir. how old am I? I'm 16. Who's the youngest in the family? Chris is the youngest. How old is Samantha? Samantha is She's 14. 14. Is Samantha 14. older than me? No, she isn't. No, younger than. Yeah, I'm the old. Am I the oldest of the children? No. No, I'm not the oldest. How old are the twins? They are 20. 20. जेनी एंड हेनरी. इतना फन एक्सरसाइज था. अब जाओ घर. अब सुनो मेरी बात. तुम लोगों ने बहुत कुछ लाइटली लिया है. अब मैं वीडियो भेजूं तो तुम वीडियो नहीं देखते. मैं तुम्हें क्या बोलूं? हाँ. I shared videos in the group here and you guys did not care enough to watch the videos. What can I say? Clinton scandal and the Clinton couple, you know, this would not only be informative for you, would be great practice for your English. There are some lovely sentences that you guys would benefit a lot from. But your old-fashioned traditional ways of learning do not allow you guys to think that this can help. How did I become what I am in English? Because of being in a class? Because a teacher gave me an hour every day and I became what I am today? You think I can make you what you are, what you want to be? You guys need to give yourself exposure to English, and when you have confusions, you need somebody who can help you the right way without bringing Hindi into the picture. And that's why I share videos. Sir, I was Okay. going to watch this video, but suddenly I had a call and I totally forgot the Happens see the sometimes, video. Sabaji. I totally understand that. Sometimes we receive a message from someone and we are Yes, going to sir. respond to that message, and then suddenly something important comes up. And then we totally forget about that message until that person calls back and says, Are bhai, jawab nahi diya tune. Are yaar, like that, you know. So it happens. I totally understand. I made the same mistake 2 days ago, actually. So I can relate to that. But the rest of you guys, Rukaiya, I have saved that video. I will watch them later because it's my semester time, so I am not getting time, you know. well, I can understand you're a student, you're staying in a hostel doing a course. But again, I'm sure you spend some time having fun. Yes. Why couldn't you just watch that video in that time? Listen, girl, your interests will also shape your personality, not only your hard work for your career, your interests. They shape our personality in, more ways than we think. So knowing about the past, having interest in this kind of stuff, I'm telling you, America is an important country for the world. And knowing a few things about America or American history will not be a disadvantage. Trust me. Yeah, I will watch them. You are learning English, everybody. English is not a language of England anymore. Okay, it is mainly an American language. Okay, a lot of Indians have connection with America. They have to go to America. They work for American companies. At least, those videos will help you understand a few different pronunciations of words as well. So many things actually. So, and not just these two videos. आपको समझना होगा
आपको अपने आप को मौका देना होगा इंग्लिश सुनने का दोस्तों। जितना ज्यादा आप इंग्लिश सुनोगे, आपको कंफ्यूजन्स होंगे कि यार ये बात ऐसे कैसे, ऐसे क्यों नहीं। कुछ जगहों पे आपको हेल्प चाहिए होती है, मुझे भी पड़ती थी जरूरत। Okay, I was lucky that I had Americans, Australians at my help, to my rescue. They always were there. I messaged them and they responded to me. So please appreciate this method. और बाकी और कोई methods काम नहीं आएंगे। वो झूठ 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 में आपको गलत फहमी में कॉन्फिडेंस देते रहेंगे। इसका हिंदी का ये इंग्लिश, उस हिंदी का ये इंग्लिश। अंग्रेज जब इंग्लिश वर्ड सुनते हैं वो हिंदी सोचते भी हैं कि आपने क्या बोला है, वो हिंदी करके समझेंगे उसको। Sir, I was listening English song in S45 app, but I couldn't understand anything because they sing sung very fastly, sir. Did you have lyrics on screen? No. No, then why do you think you will understand? आपको हमें हिंदी गानों के वर्ड्स नहीं समझ में आते कि कौन सा वर्ड बोला है, आप इंग्लिश के समझ जाएंगे। अच्छा दोस्तों, आप में से कितने लोग हिंदी वाले वर्ड्स भी नहीं समझ पाते? गाने में जब बोलते हैं तो आपको जानना पड़ता है क्या बोला है भाई। दो चार लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं, चाहते हैं, गूगल करते हैं क्या बोला वो गाने में। आप इंग्लिश में समझ जाएंगे ऐसे। No, sir. क्यों कोशिश करी? अच्छा, मैंने जब भी गाना प्ले किया है सामने लिरिक्स रखा था, Yes, sir. आपने ऐसा क्यों नहीं सोचा कि सर सोचा होगा सर के पास दिमाग नहीं, वो इंग्लिश लिरिक्स रखते हैं, No, हम sir. बगैर लिरिक्स के सुनेंगे। Why you frustrated today, sir? तो आप ही तो कर रही हैं, मैं थोड़ी कुछ कर रहा हूं। आपने कहा कि आपने लिरिक्स के बगैर सुनने की Sir, कोशिश की। sir, my mood was very off, and I was listening Hindi song. That suddenly I realized आई वाज it's लिसनिंग हिंदी सॉन्ग्स नहीं मैम, आई वाज लिसनिंग टू हिंदी सॉन्ग्स। Hindi song. Sorry, sir. Then ये I आदत कब realized पड़ेगी आपको? that 2025 I में कि 26 में? 25, sir. I should listen English song. That ठीक है, time I ठीक है। It's a good idea, and I encourage everybody to listen to English songs in their free time. But the lyrics should be on the screen. So when you are on YouTube, search the song and put the word lyrics so that you get lyric video. Okay, where the lyrics are on the screen, it will help understand the songs better. Otherwise, you will not understand anything at all. Fine then. Hopefully, we will be more productive this year, this week, and this year as well. Hopefully, because it's our first day. So I'm wrapping up and homework for tomorrow. Malabat Purna, let's do it. I'm sharing the homework in the group, guys. We will start with the reading section. I'll see you guys. Don't forget to do your homework. Bye-bye, everyone. Bye, sir. Bye. Good night, sir. Bye. Good night, Sorry sir. for the criticism, Sabaji, but I had to do that. See ya. I take Bye-bye. everything. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.